جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے موٹر سپورٹس ایونٹ کا آغاز تھل جیپ ریلی کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ ریلی کا آغاز کل سے کوٹادو کے چانگا مانگا ٹیلی سے ہوگا۔ پہلے مرحلے میں گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ مکمل کی جائے گی۔ فیصل اسٹیڈیم میں 10 نومبر کو میوزیکل نائٹ کا انعقاد ہوگا۔ نامور سنگر رمضان ثانی، ظہور لوہار اور گلاب پرفارم کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر میں پینا فلیکسیز آویزاں کر دیے گئے۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں 190 کلومیٹر طویل ٹریک تیار کیا گیا۔ جیپ ریلی کے لیے سخت فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ 6 ڈی ایس پیز، 15 انسپیکٹرز، 63 سب انسپیکٹرز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ 90 اے ایس آئی، 93 ہیڈ کانسٹیبلان سمیت 863 کانسٹیبلان ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ پنجاب کے روایتی ثقافتی کھیلوں کو فروغ دینے کا مشن میاں والی کے نواحی علاقہ غلبلیاں والا میں نیزہ بازی کا میدان سج گیا۔ نیزہ بازی کے مقابلوں میں پاکستان بھر سے نیزہ باز حصہ لے رہے ہیں۔ سر پر پگڑی، ہاتھ میں نیزہ اور سر پٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جوان، یہ ہے نیزہ بازی کا میدان۔ میاں والی کے نواحی علاقہ غلبلیاں والا میں ملک کے معروف نیزہ باز اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جوڑا کلب بھکر نیزہ بازی مقابلوں کے فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا۔ نیزہ باز کہتے ہیں نیزہ بازی بہترین تفریح ہے، یہ کھیل برے کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نیزہ بازی کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ حکومت نیزہ بازی کے کھیل کی سرپرستی کرے۔ گیم ہے جی، تفریح پروگرام ہے۔ ارشد خان کی مہربانی ہے، اس یاد کیتا ہے، سارے دوستوں اکٹھا کیتا ہے۔ اس بہانے نال پورے ملک کے دوست کٹھے ہوئے ہیں۔ شغل ہے، تفریح ہے، ایدا ایک زندگی دی انجائے ہے، بہت اچھی انجائے ہے، جن دے نہ ہی کوئی جوا ہے، نہ ہی کوئی حرام خوری ہے، اور عزت دار گیم اور اچھی گیم، اس سے بہتر اور اچھی گیم نہیں ہے۔ ہمارا شوق ہے، اللہ پاک دیتا ہے، کر لیتے ہیں سب کچھ، انجوائے کرتے ہیں، زمیندارہ شوق ہے، اور اس لیے ہم اپنے شوق سے بس تفریح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ نیزہ بازی کے مقابلوں میں پہلے روز 30 کلبز نے حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں 150 کلب شریک ہیں۔ ان کلبز کے 600 نیزہ باز اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ جہاں جس علاقے کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، وہاں اس علاقے کی جو منفی سرگرمیاں ہوتی ہیں معاشرے کی، وہ کام ہوتی ہیں۔ میاں والی کے سرزمین کے آپ کو حالات کا اندازہ ہے۔ یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ امن و امان کو ہم بحال رکھتے ہوئے نوجوانوں کو گراؤنڈ کی طرف راغب کریں، اور نوجوانوں کو ایک اچھے سپورٹس اور ایک اچھی تفریح مہیا کریں۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ 30 کلب آج دوڑ گئے ہیں، اور ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے یا توقعات ہیں، وہ انشاءاللہ کل تک 150 کلب کی ارائیول متوقع ہے۔ نیزہ بازی کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کلب کو 4 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کو فضائی آلودگی نے لپیٹ میں لے لیا۔ شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس سنگین حد تک بڑھنے لگا۔ فضائی آلودگی میں ملتان آج جنوبی پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 882 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 790 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ شہر اولیاء کی فضا گرد آلود، شہر میں ہر طرف سموک کے ڈیرے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس میں 882 پوائنٹس۔ رحیم یار خان جنوبی پنجاب کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے، جہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 790 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خانیوال کا AQI 236، مظفر گڑھ 232، سرگودا 229، لیا 225، ڈی جی خان 224، بہاولپور 223، راجن پور 199 اور میاں والی کا 187 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ بٹھے، ٹریفک اور انڈسٹریل یونٹس کا دھواں اور فصلوں کی باقیات جلانا سموک کی وجہ ہے۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود۔ شہر کی فضا آئے روز زہریلی ہونے لگی ہے، جس سے شہریوں کو نزلہ، زکام، سانس، آنکھوں میں جلن اور بخار جیسی امراض کا سامنا رہنے لگا ہے۔ آلودہ فضا سے بچنے کے لیے طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہری حلقوں نے حکومت پنجاب سے اسموک پر قابو پانے کے لیے کڑے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کمشنر ڈیرہ غازی خان انتظامیہ اسموک کا باعث بننے والے بھٹوں کے خلاف ان ایکشن۔ ڈپٹی کمشنر ریونیو نعمان تارڑ کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان انتظامیہ سموگ پر قابو پانے کے لیے متحرک فوکل پرسن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نعمان تارڑ کا کہنا ہے کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے والے بھٹوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا گیا ہے، باقی بھٹے انڈر پروسیس ہیں۔ 100 سے زائد جو بٹے ہیں ان کو ہم نے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ منتقل کر لیا ہے، اور کچھ بٹا جات جو ہیں وہ 20 یا 30 ہوں گے جو انڈر پروسیس ہیں، وہ بھی اپنی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ ان کو منتقل کر رہے ہیں۔
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नुमान तारड़ का कहना था कि फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ तमाम तहसीलों में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक जो है उनके हमने भट्टे ही तोड़ दिए जिनके जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं हुए थे और वो आलूदगी और स्मोक का बायस बन रहे थे। जो फसलों की बाकियात को किसान आग लगाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी आलूदगी और स्मोक का बायस बनता है। उस वाले से हमने 30 से ज्यादा FIR जिला भर में करवाई हैं और 4 लाख से ज्यादा जुर्माना कर चुके हैं और उसके अलावा साथ अवेयरनेस भी चल रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। रहीम यार खान में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक में इजाफा, दमा, छाती का इन्फेक्शन, सरदर्द, नज़ला, जुकाम और दीगर अमराज बढ़ने लगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मारूफ डॉक्टर शयान खानसू कहते हैं शहरी फ़ज़ाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। रहीम यार खान को भी फजाई आलूदगी और स्मोक ने लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब के फजाई आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान सफ़े अव्वल पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 790 पॉइंट्स पर पहुंच गया। शेखजन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर शयान कांजू का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फजाई आलूदगी जब 300 पॉइंट से तजावज कर जाए तो इंतहाई मुजरे सेहत बन जाती है, जिससे शहरियों में सांस की तकालीफ बढ़ जाती है। दमा, फेफड़े, छाती का इन्फेक्शन, सरदर्द, नजला, जुकाम व दीगर बीमारियां आम हो जाती हैं और अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। ऐसे में शहरियों को चाहिए कि मुंह पर मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। धुआं छोड़ती गाड़ियों, भट्टों और फसलों की बाकियात को जलाने से फजाई आलूदगी में इजाफा होता है। शहरों ने इंतजामिया से ठोस अमली इक़दाम करके फजाई आलूदगी कंट्रोल करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में सैलाब से मुतासर मिडिल स्कूलों के लिए जारी प्रोजेक्ट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल में इमरजेंसीज, क्लाइमेट चेंज और चिल्ड्रन वेल बींग एजुकेशन के उन्वान से तकरीब सजाई गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के तहत 425 स्कूलों की ताज़ीन और आइश की गई है। मुल्तान में यूनिसेफ, सांच प्रीत और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से साउथ पंजाब के ज़ेरे तमाम सैलाब से मुतासर स्कूलों के लिए जारी प्रोजेक्ट के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि 2022 से अब तक सैलाब से मुतासर होने वाले 425 स्कूलों की तामीर, मरम्मत और तज़ीन और आइश की गई है। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में बैग्स, हाइजीनिक्स किट भी फराहम की गई हैं। इस फील्ड में काफ़ी काम किया है उन्होंने। ना सिर्फ ये कि एमरजेंसी रिस्पांस जो होता है उस बारे में SOPs बनाने में मदद की, टीचर्स को ट्रेन किया, बच्चों के लिए हाइजीन किट्स दी, उनके लिए मुतबादल जो लर्निंग के प्रोग्राम थे वो पेश किए और बल्कि बच्चों को जो है ना प्रैक्टिकली वो खैमे और दूसरी कई ज़रूरियात की चीज़ें भी प्रोवाइड की। सेक्रेटरी एजुकेशन उबैदुल्ला खोकर ने प्रोजेक्ट के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लगाए गए स्टॉल्स का विजिट किया। इनका कहना था कि यूनिसेफ के ताउन से जारी ये तालीमी प्रोजेक्ट काबिले तारीफ है। तालीम की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तकरीबन जितने भी बच्चों ने फायदा इस प्रोग्राम से लिया है, इसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर 500 प्लस बच्चे इससे सालाना एक प्रोग्रेशन के थ्रू फायदा मजीद ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह। यूनिसेफ की टीम का कहना था कि रोबोटिक और जदीद मयारात के मुताबिक तख्लीकी अंदाज में तालीम को बच्चों तक पहुंचाया गया है, जो जदीद और बेहतरीन तालीम हासिल करने का जरिया है। बच्चों के प्रोजेक्ट इस बात का सबूत हैं कि ये सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मियांवाली के शहरी ट्रैफिक पुलिस के जुर्मानों से परेशान, कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने बहुत ज्यादा कर दी हैं। जुर्मानों की अदायगी गरीब आदमी की कुव्वत से बाहर है। जुर्मानों की मद में हुकूमत अवाम को लूट रही है। मियांवाली के शहरियों का कहना था कि हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपए जुर्माना कर दिया जाता है, जो गरीब आदमी के लिए अदा करना इंतहाई मुश्किल है। मोटरसाइकिल गरीब आवाम की सवारी है, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने वाला 2000 रुपए जुर्माना कैसे अदा करे। 2000 रुपये जुर्माना बहुत ज़्यादा है। हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम अभी बाज़ार से सामान लेने गए थे। हम डेली का सामान घर के लिए राशन लेते हैं, तो जो पैसे होते हैं उधर खर्च हो जाते हैं और हमने 100 रुपये का सुबह पेट्रोल डलवाया और 2000 रुपये अब जुर्माना हो गया। हम कैसे अदा करें। शहरियों का मजीद कहना था कि हेलमेट की पाबंदी हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है, मगर हुकूमत जुर्मानों की पॉलिसी पर नजरसानी करे। आम आदमी दिन भर में 1000 रुपए कमाता नहीं और 2000 रुपए जुर्माना हो जाए तो बजट बर्बाद हो जाता है।
हमारे ऊपर जो ये बहुत ज़्यादा जुर्माना आयद किया जा रहा है हेलमेट न होने की वजह से, तो हमारी एक तो हुकूमत से गुजारिश है कि इसको फिलफौर ख़त्म करें और इसको और नहीं करते तो बहुत ज़्यादा मिकदार में इसको काम किया जाए। सब्जी वगैरह बेचते हैं 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया है हेलमेट ना होने की वजह से। हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए बेहतर है, इस जुर्माने को कम किया जाए, कम से कम 200 रुपया गरीब आदमी के लिए ठीक है। शहरियों का कहना है कि धुआं छोड़ते मोटरसाइकिलों को भी 2000 रुपए जुर्माना किया जाता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। दुनियापुर में पेट्रोल पंप यूनियन तहसील इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। पेट्रोल पंप मालिकान ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर अनम सगीर बाजवा के रवैये पर एहतजाज करते हुए पेट्रोल पंप बंद कर दिए। दुनियापुर में पेट्रोलियम एसोसिएशन ने तहसील इंतजामिया के रवैये के खिलाफ हड़ताल कर दी। पेट्रोल पंप मालिकान ने गुज़श्ता शाम से पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि एसी दुनियापुर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोज पेट्रोल पंप को भारी जुर्माने करते हैं और अक्सर पेट्रोल पंप सील करके मुकदमा भी दर्ज करवाए जाते हैं। जिसके यानी के हक के लिए हम पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। हम इस बात पे जो है वो पेट्रोल पंप बंद किए हैं कि अगर पहले तो बचता कुछ नहीं है, अगर कुछ चार आने बचते हैं तो वो इज्जत थी, जब इज्जत ही ना बचे तो फिर ये कारोबार जारी किस लिए रखना। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी एसी साहिबा से जान छुड़ाई जाए। ये हमें ब्लैकमेल करती है, अब इनसे कोई बात करे तो ये कि हरासमेंट के FIR की धमकियां देनी शुरू कर देती है हमें। पेट्रोल पंप यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि हम रूल्स के मुताबिक पेट्रोल पंप चला रहे हैं, लेकिन एसी और दीगर अफसरान अक्सर आकर पैमाना और कागजात चेक करते हैं जो वो के कानून के मुताबिक नहीं कर सकते। लीगली तौर पे पेट्रोल पंप चला रहे हैं, हमारे कागजात, हमारे मेजरमेंट, हर चीज पूरा है। कल मैडम साहबा निकली है और जाके हमारे पंपों को चेक किया है, पैमाने हमारे पूरा थे, जबकि लीगली तौर पे इनको हक ही नहीं है। हमारे पैमाने चेक कर सकते हैं इंडस्ट्रीज, और दूसरा जो है ना हमारे रेट्स और पैमाने ओगरा चेक कर सकते हैं रूल रेगुलेशन के मुताबिक। प्राइस मजिस्ट्रेट का ये काम नहीं है कि वो आगे पैमाने चेक करे। हमारा जो बिजनेस है वो डीओ इंडस्ट्री के अंदर आता है। डीओ इंडस्ट्री आए, हमारे पैमाने चेक करे, हमारी कीमतें चेक करे, ओगरा को ये इख्तियार है। ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का ये इख्तियार नहीं है कि वो आगे हमें परेशान करे। किसान कहते हैं कि गंदम की काश्त का मौसम है, पेट्रोल पंप मालिकान और मकामी इंतजामिया के झगड़े में नुकसान हमारा हो रहा है। मुसाफिर भी पेट्रोल पंप की बंदश से परेशान हैं। रास्ते में हमारे घर का फ्यूल खत्म हो गया है और अब हम बताएं हम कहाँ जाएं। ये इंतजामिया और पंप मालिकान का आपस में मसला है और आवाम दर बदर परेशान हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है जी, ये पंप वाले जो हैं इन्होंने पंप सब बंद कर लिए हैं, एसी साहबा के साथ इनका रौला है। हम काश्तकार किधर जाएं कि हमने पहले तो हमारी गंदम नहीं बिकी, अभी जो गंदम काश्त करनी है हमें डीजल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप यूनियन के रहनुमाओं ने एसी अनम सगीर बाजवा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। कैमरा मोहम्मद यकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। मुल्तान में फौजी सीमेंट ने सजाई डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स के एहसास में तकरीब तकसीम इनामात की। सालाना तकरीब में मुल्क भर से डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड सलाहुद्दीन अयूबी ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। फौजी सीमेंट के ज़ेरे एहतमाम तकसीम इनामात की सालाना तकरीबात का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन अयूबी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। रोही से ख़ुसूसी गुफ्तगू में ब्रिगेडियर सलाहुद्दीन अयूबी का कहना था कि फौजी सीमेंट ने गुज़श्ता 3 दिहाइयों में लाखों टन सीमेंट फरोख्त किया। क्वालिटी वर्सेस जब कीमत देखे तो हमारी क्वालिटी चूंकि बहुत बेहतर है और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बड़ा हम कम रखते हैं। वाई बिकॉज वी वांट आवर कस्टमर्स कि उनको बेस्ट चीज़ मिले। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फौजी सीमेंट बहुत पसंद आ रहा है। इधर मुल्तान रीजन और हमारी साउथ रीजन में भी हमारी पिछले साल की सेल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में सबसे बेहतर रही हैं और अभी तक की इस क्वार्टर की सेल्स भी जो हैं वो मार्केट में बाकी हमारे कंपेटिटर्स जो हैं उनसे बहुत बेहतर है। रीजनल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स मोहम्मद अशरफ मलिक ने कहा कि फौजी सीमेंट पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट बनाने वाला अदारा बन गया है। फौजी सीमेंट की आमदनी का हिस्सा फलाई अदारों और दफाए वतन की राह में कुर्बानियां देने वाले पर खर्च होता है। जो है ना अपनी लॉन्चिंग की, अपने ब्रांड की और यहाँ से जो लोगों से हमने प्यार समेटा है और जिस तरीके से लोगों ने हमसे कारोबार किया है तो हम बहुत खुश हैं इसके ऊपर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये किसी इस कारोबार के साथ वाबस्ता अफराद जो हैं उनका पैसा जो है वो किसी सेठ के जेब में नहीं जा रहा, वो इस
इदारे में जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं उनका हर रुपया कुछ फलाह और जो इसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इदारे की उनमें जाता है, जिसमें शुहदा की फैमिलीज़ और जिनमें स्कूल कॉलेजेस और आर्मी के जो वेटरन्स हैं उनको पैसा जाता है। तकरीब में नेशनल सेल्स मैनेजर इरफान नसीम, सीनियर मैनेजर सेल्स राजा गयूर अशरफ, अहमद फारूक, मोहम्मद आमिर कादिर समेत दीगर टीम्स मेंबर्स भी शरीक हुए, जबकि नुमाया कारकर्दगी वाले डीलर्स, एक्सपोर्टर्स और ट्रांसपोर्टर्स को इनामात और तारीफी इस्तनाद से नवाजा गया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। बुरेवाला में खेलता पंजाब गेम्स के मुकाबले जारी कायद-ए-आज़म स्टेडियम में कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। अबूबकर कबड्डी क्लब की टीम ने मैच 33 पॉइंट से जीत लिया। कायद-ए-आज़म स्टेडियम बुरेवाला में खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। मैच मौला हैदर कबड्डी क्लब और अबूबकर कबड्डी क्लब की टीमों के दरमियान खेला गया। अबूबकर कबड्डी क्लब की टीम ने 23 के मुकाबले में 33 पॉइंट से मैच जीत लिया। कबड्डी मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके खूब दाद वसूली। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलक फारूक अहमद, साबक लीगी MNA चौधरी नजीर अहमद आराई और साबक लीगी MPA खालिद महमूद डोगर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चौधरी नजीर अहमद आराई का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब गेम्स नौजवानों के लिए तोहफा है। खालिद महमूद डोगर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने कबड्डी मुकाबले करवाकर पंजाब के सकाफती खेल को उजागर किया है। मोहतरमा DC साहब और खास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला और CO बल्दिया बुरेवाला ने इंतहाई अनथक मेहनत के बाद एक बड़ा कामयाबी मिलकर आया। असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद का कहना था कि शहरियों को कबड्डी के बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिले। स्पोर्ट्स ऑफिसर और इनकी टीम को कामयाब इवेंट करवाने पर मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ विनर टीम को। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया, आज आपने ये मैच विन किया और फाइनल मैच विन किया है, तो बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर का कहना था कि जीतने वाली टीम मुल्तान डिवीजन में जिला बहाड़ी की नुमाइंदगी करेगी। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए और हारने वाली टीम को 50,000 रुपए के चेक दिए गए। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ चौधरी, रोही, बुरेवाला।